عمران خان ملک میں انتشار چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ گالی اور دھمکی سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام ان سے کارکردگی کا سوال نہ پوچھیں۔ سازش کا بیانیہ اپنا کر اپنی لوٹ مار سے عوام کی نظریں نہیں ہٹا سکتے۔ عمران نیازی خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر کس حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ فارن فنڈنگ، فراح گوگی سمیت عمران خان کی کرپشن کی 20 کہانیاں ہیں۔ اس بات پر غور کیا ہے کہ ان کا احتساب کہاں سے شروع کریں؟ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مسلم لیگ نون کے پاس مسائل حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اتحادی حکومت مل کر فیصلے کرے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ تحریک انصاف کی سیالکوٹ میں چرچ کی جگہ پر جلسہ کرنے کی ضد، ضلع انتظامیہ نے اجازت نہ دی۔ مسیحی برادری کا شدید احتجاج، سیاسی مقاصد کے لیے مقدس مقامات کے استعمال کی مذمت۔ مسیحی برادری کے احتجاج کے باعث جلسے کا مقام تبدیل۔ سیالکوٹ میں چرچ کی جگہ جلسہ نہ کرنے سے متعلق عدالت نے فیصلہ دیا۔ مسلم لیگ نون کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں۔ جلسہ کرنا بنیادی جمہوری حق ہے، رکاوٹ ڈالنا ہمارا شیوا نہیں۔ ہم اپنے مخالفین کے حقوق کے تحفظ کے بھی حامی ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا حق، لیکن مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان متحدہ عرب امارات کے نئے صدر منتخب۔ سپریم کونسل نے منظوری دے دی۔ مرحوم صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں شاہی خاندان کے افراد کی شرکت۔ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات پر متحدہ عرب امارات میں 40 دن کا سوگ، پاکستان میں بھی 3 دن کا سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف لندن سے ابوظہبی پہنچیں گے۔ نو منتخب صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور شاہی خاندان سے اظہار تعزیت کریں گے۔ پاکستان اور چین نے ہمیشہ چیلنجز کا مل کر مقابلہ کیا ہے۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے۔ کراچی واقعے میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ ہم نے کبھی اداروں کے خلاف فرضہ سرائی نہیں کی۔ عمران خان کی بد اخلاقی نے انتشار پھیلایا۔ انہیں آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز۔ شروع سے موقف تھا کہ عمران خان کو آئینی طریقے سے ہٹائیں گے۔ ہماری توجہ مسائل کے حل پر مرکوز ہے، عمران خان پر نہیں۔ پی ٹی آئی والے یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے۔ الیکشن سے پہلے اصلاحات کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل سید خورشید احمد شاہ۔ ملک میں سخت گرمی کی لہر، سندھ اور بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں الرٹ جاری۔ جیکب آباد اور شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ڈی جی خان اور موہنجداڑو میں 50 ڈگری، سبی دادو خیرپور لاڑکانہ اور پٹ ایدن میں پارہ 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ آئندہ ہفتے بھی شدید گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ 18 مئی سے درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان۔ ملتان 47 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور فیصل آباد میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور اور مظفر آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تیز رفتار ترقی کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ آئی ٹی شعبے کو ترجیح دے کر کم وقت میں ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، ماورائے عدالت قتل کے بڑھتے واقعات، قابض فوج کی مختلف علاقوں میں چھاپے اور تلاشی کی کارروائیاں، متعدد نوجوان گرفتار۔ نہتے فلسطینی اسرائیلی بربریت کا شکار، صحافی شیری ابو عاقلہ کے جنازے میں شریک افراد پر دھاوا بول دیا، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلیں۔
अमेरिका का एक बार फिर रूस से यूक्रेन में जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का रूसी हम मनसब सरगई शोइगु को टेलीफोन। बातचीत के लिए चैनल्स खुले रखने पर भी गुफ्तगू। 18 फरवरी को रूसी हमले के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर दिफा के दरमियान ये पहला राब्ता था। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में आतिशज़दी, 27 अफराद हलाक, 40 जख्मी। अमवात में इजाफे का खदशा, 60 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान 23 मई को होगा। 3 वनडे 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी में शेड्यूल। 2 मरहलों पर मुश्तमिल कंडीशनिंग कैंप के लिए 60 खिलाड़ी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर तलब। पहला मरहला कल से शुरू होगा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज की तैयारी। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का कराची में तरबियती कैंप। 26 खवातीन क्रिकेटर्स की शमूलियत। 3 T20 और 3 एक रोजा मैचेस खेले जाएंगे। पहला T20 24 मई को होगा। और तुर्की में शादी वाले दिन जूडो का दिलचस्प मुकाबला। दुल्हन ने ब्लैक बेल्ट होल्डर दूल्हे को शिकस्त दे दी। हाजरीन से खूब दाद समेटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान मुल्क में इंतशार चाहते हैं। ये समझते हैं कि गाली और धमकी से अपनी मर्जी के फैसले करवा लेंगे। ये नहीं हो सकता कि अवाम इनसे कारकर्दगी पर सवाल न पूछें। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान ने आइन और पार्लिमान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि 4 साल नाअहल और नालायक लोग इक्तदार से चिमटे रहे। सियालकोट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल, जो कि हर जलसे में इस्तेमाल किया जा रहा है, आपके पास कोई सरकारी ऐसी पोजीशन है जो आप खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके उन जलसों में जा रहे हैं जहां अदारों को गाली दे रहे हैं, अदालतों को गाली दे रहे हैं, जजेस को गाली दे रहे हैं, मुल्क में इंतशार, मुल्क में फसाद, मुल्क में अनारकी, सिर्फ एक वजह से कि आज आप उस इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं है। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान ने इतराफ़ किया कि वो नैब को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। मसीही बिरादरी चर्च का ग्राउंड मजहबी रसूमात के लिए इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी जमात को मसीही बिरादरी और उनके मजहबी जज्बात का एहतराम करना चाहिए। ये हुकूमत का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मसला नहीं था। ये मसला मसीही बिरादरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान था। जलसे की इजाज़त मांगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जो यहाँ ग्राउंड है चर्च वाला, उसमें वो इबादत गाह है, वो इस्तेमाल करती है मसीही बरादरी। इसमें तमाम तफसील इस ख़त में 9 मई को लिखकर डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई थी उनकी तरफ से। लेकिन क्योंकि रवैये के अंदर निगोसिएशन और डायलॉग नहीं है, फाशिस्ट लोग हैं जो अपने फैसलों को सिर्फ मुसल्लत करना जानते हैं और समझते हैं कि आप गाली देकर, धमकी देकर, गुंडागर्दी कर कर, बदमाशी करके आप इस तरह के फैसले करवा लेंगे। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत का बयानिया अवाम को रिलीफ देना और महंगाई को कम करना है। मुस्लिम लीग नून का फोकस मईशत को बेहतरी की तरफ ले जाना है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की करप्शन की 20 कहानियां हैं जिन्हें सामने लाएंगे। लंदन में पीटीवी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने मुल्क को माशी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। मसाइल के हल के लिए इत्तेहादी हुकूमत मिलकर फैसले करेगी। इस अजलास में जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो कि यानी तबाह हो चुकी है, और इस नाअहल नालायक टोले ने जिस तरह से मुल्क की इकॉनमी को का बेड़ा गर्क कर दिया है और जो उन्होंने गंद फैलाया है करप्शन का, और इसने फंड्स के नाम पे, फंडिंग के नाम पे जो इसने मुल्क हलाए हैं, और फराह खां की लूट मार अपनी अलग एक कहानी है।
اس قسم کی 20 کہانیاں ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے کہ اگر احتساب کیا جائے تو کہاں سے شروع کیا جائے اور ان کو ایکسپوز کیا جائے، قوم کے سامنے ساری صورتحال رکھی جائے، اور جو معاشی صورتحال ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس صلاحیت بھی ہے، اور اس کی لیڈرشپ نے اس سے پہلے بھی مشکل ترین حالات میں ملک کو جو ہے وہ ایسی مشکلات سے نکالا ہے. خاص طور پہ جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو وہ آپ سب کے جو ہے وہ دنوں کے بعد جو ہے وہ موجود ہوگی. لیکن یہ ہے کہ تباہی اس قدر ہے کہ اس سے نکالنے کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے. وہ کاسٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس نااہل نالائق ٹولے کو ملک کے اوپر مسلط کرنے میں. تو یہ جن لوگوں نے کیا ہے اور جس طرح سے یہ ہوئے ہیں، اور اب ایک اتحادی گورنمنٹ ہے جس کو پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی ہے، تو یہ ساری صورتحال جو ہے ان کے سامنے رکھی جائے گی. پھر فیصلہ تو جو اتحادی جو ہے وہ اکثریت رائے یا اتفاق رائے سے کریں گے اس کے اوپر عمل ہوگا. ناظرین، پی ٹی آئی کی جانب سے سیالکوٹ میں مسیحی برادری کی ملکیت چرچ کی جگہ پر جلسہ کرنے کی کوشش پر مسیحی برادری سراپا احتجاج ہے. مسیحی برادری کے احتجاج پر جلسے کا مقام تبدیل کر دیا گیا. تفصیل بتا رہے ہیں سمیع اللہ. عدالتی احکامات کے باوجود پی ٹی آئی کی مقامی قیادت اس بات پر بضد تھی کہ چرچ کی جگہ پر ہی جلسہ ہوگا. اس رویے پر مسیحی برادری نے شدید احتجاج کیا، جس پر جلسے کا مقام تبدیل کرنے کا اعلان کیا گیا. مسیحی برادری کا موقف تھا کہ سیاسی مقاصد کے لیے مقدس مقامات کا استعمال قابل مذمت ہے. جینا ہوگا، مرنا ہوگا، کرنا ہوگا، کرنا ہوگا. اتنی حیا، اتنی شرم نہیں ہے کہ عبادت گاہ کو یہ جلسہ گاہ بنا رہے ہیں، عبادت گاہ کو یہ ناچ رنگ بنا رہے ہیں. ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن یہ کام قبول نہیں کریں گے. یہ جگہ ان کے باپ کی جگہ نہیں بلکہ ہماری عبادت گاہ ہے. جلسہ اگر ہوگا تو ہماری لاٹھوں سے گزر کر ہوگا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سیالکوٹ میں چرچ کی جگہ جلسہ نہ کرنے کے بارے میں عدالت نے فیصلہ دیا. مسلم لیگ نون کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ملک میں بسنے والی تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. چرچ کی گراؤنڈ پر جلسہ کرنا عبادت گاہ کی توہین ہے. انہوں نے کہا کہ جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے، لیکن مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف چرچ کے گراؤنڈ میں جلسے پر اصرار نہ کرے. علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ اگر مسیحی برادری راضی نہیں تو تحریک انصاف کوئی اور جگہ دیکھ لے. یہ مسیحی برادری بھی تو ہماری برادری ہے نا. آپ کو تو بڑا عمران خان صاحب تو اقلیتوں کے حقوق کی بہت بات کرتے ہیں، اور ان کے دور میں چونکہ اقلیتوں کے حوالے سے کچھ کام ہم نے کیا تو ان کو تو خود چاہیے کہ وہ اعلان کر دیں کہ اگر مسیحی برادری جو ہے نہیں چاہتی کہ ان کی جگہ پر یا ان کے کسی مقام پر جلسہ کیا جائے تو وہ دوسری جگہ چلے جائیں. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے کہا ہے کہ چرچ کی زمین مذہبی رسومات کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہاں پر ناچ گانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جلسے کی آڑ میں آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور ان کے مسیحی بھائیوں کا آپس میں دنگا فساد ہو تو آپ کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سیالکوٹ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کو ایسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جگہ کرسچن کمیونٹی کی ہے اور اس جگہ کے علاوہ پورے سیالکوٹ میں کہیں بھی جلسہ کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. جہاں پہ آپ کا ٹاؤن ہے یہ جگہ پریسبیٹیرین امریکن سوسائٹی کی پرائیویٹ لینڈ ٹھیک ہے، جس کی آپ نے ان سے ڈیو پرمیشن نہیں لی. وہ ایک مائنورٹی ہے. آپ کے اپنے گھر پہ فار ایگزامپل کوئی زور آور آ کے کہا کہ جی میں نے وہ فنکشن کروانا ہے، تسی سارے سائڈ تے ہو جاؤ، ہمارے جذبات ہیں، واٹ ول بی یور ریئیکشن؟ کرسچن کمیونٹی کا کہنا ہے کہ یہ ہماری عبادت گاہ ہے، اسے ایک سیاسی میدان نہ بنایا جائے. باقاعدہ ڈی سی او سیالکوٹ کو درخواست بھی دے رکھی ہے. پریسٹیج چرچ آف پاکستان کے عہدیدار ڈاکٹر ریونڈ مجید ایبل کا کہنا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اور عبادت گاہ میں کسی قسم کے سیاسی جلسے کو روکنے میں حکومت ہماری مدد کرے. سی ٹی اے بوائز ہائی اسکول کا کیمپس جو تعلیم کے لیے اور کلیسیائی مقاصد کے لیے ہے، اس کو کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہونے سے حکومت پاکستان ہمیں انصاف فراہم کریں گے. پی ٹی آئی کی قیادت اس بات پر بضد تھی کہ اگر ہمیں جیلوں میں بند بھی کر دیں ہم نے جلسہ یہاں ہی کرنا ہے. تاہم مسیحی برادری کے شدید احتجاج کی وجہ سے جلسے کا مقام تبدیل کرنے کا اعلان کیا گیا. سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान न्याजी की बदअखलाकी पर मबनी सियासत ने अवाम में इंतशार फैलाकर मुल्क को दोराहे पर ला खड़ा किया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वक्त आ गया है तमाम सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। तफसील से आगाह करेंगे नवीद हयात। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम से तरक्की के झूठे वादे किए और आज भी वो आलमी साजिश के बेबुनियाद बयानिए के जरिए आम आदमी को धोखा दे रहे हैं। कोई साजिश का जिस सर पड़ रही है वो अवाम को धोखा दे रहा है, जिस तरह इसने अवाम को धोखा दिया था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। इसने वादा किया मैं 50 लाख घर दूंगा, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इसी तरह आज ये झूठ बोल रहा है। अब इसके झूठ खत्म होने का वक्त आ गया है। कानून हरकत में आएगा, इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे और इसको सिखाएंगे। अगर ये अपना जो है ना वो प्यार से नहीं समझता, सख्ती से सिखाएंगे कि पाकिस्तान का कानून और आइन तुम्हारी अना से बड़ा है। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान न्याजी और उनके साथी मुल्क में खून खराबा चाहते हैं, ताहम इन्हें कानून शिकनी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। तो अवाम जान ले, एक यहाँ जलसा करना चाहता है करे, तमाशा लगाना चाहता है कराए, लेकिन कानून के साथ खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि आम आदमी को दरपेश तमाम मसाइल से आगाह हैं और इनके हल के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अबू ज़ैबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। यूएई की 7 रियासतों पर मुश्तमिल सुप्रीम काउंसिल ने इसकी मंजूरी दी। उनकी तैनाती शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की जगह की गई है, जो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। मरहूम खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की तदफीन अबू ज़बी के अलबतीन कब्रिस्तान में की गई है। उनकी नमाज जनाजा में शाही खानदान के अफराद ने शिरकत की। शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर मुत्तहिदा अरब अमारात में 40 दिन का सोग है। पाकिस्तान में शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर 3 दिन का सोग है और कौमी परचम सरनेगू है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए लंदन से अबू ज़बी पहुँचेंगे और नौ मुंतखब सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और शाही ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारत खाने गए और नाज़िमुल उमूर से शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर ख़ारजा ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मरहूम की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने भी शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने यूएई सफारत खाने में हुकाम से मुलाकात की और अपने तासुरात दर्ज किए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान एक सच्चे और मुखलिस दोस्त से महरूम हो गया है। इंसानियत और मुस्लिम उम्मा की तरक्की और खुशहाली के लिए मरहूम की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 17 मई से अमरीका का दौरा करेंगे। वीडियो बयान में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम इमदाद के बजाय तिजारत पर यकीन रखते हैं। तहफ़्फ़ुज़ खुराक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का मौक़िफ़ देना इंतहाई अहम है। न्यूयॉर्क में फूड सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हो रहा है। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देना बहुत ही ज़रूरी है। पाकिस्तान में दुनिया भर में एक तो कोविड का पैंडेमिक की वजह से और सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फिर खान साहब के अपने पॉलिसीज की वजह से अपने नालायकी नाअहली की वजह से पाकिस्तान ने पहले से ही वीट का बहरान, यूरिया खाद का, DAP का बहरान का मुकाबला करना पड़ा और जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स की वजह से इन इश्यूज में इन मिसाइल में इजाफा होने का खतरा है। पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी और एनर्जी इनसिक्योरिटी एक बहुत अहम टॉपिक है। हम अमेरिका से पैसा मांगने नहीं जा रहे हैं। हम खान साहब की तरह भीख मांगने हर जगह नहीं पहुंचेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में भी अप्रोच यही रहा कि वी बिलीव इन ट्रेड नॉट एड, एंड मैं वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फिलॉसफी को अपने वजीर खारजा होते हुए उसी पॉलिसी पे अमल करूंगा। मैं जहां भी जोर दे सकता हूं ट्रेड पे इन्हांसमेंट करने के लिए दुनिया भर में मैं जरूर करूंगा, पाकिस्तान की मईशत को फायदा दिलवाने के लिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन ने हमेशा तमाम चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला किया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कराची वाक़े में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। कराची में दहशत गर्दी का शिकार होने वाले चीनी बाशिंदों की याद में वजारत हारजा में तकरीब का इनेकाद किया गया।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन दोस्ती रियासत और अवाम की सतह पर है। चीनी शहरी हमारे मेहमान हैं, इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। जैसे हमने माजी में दहशतगर्दी का मुकाबला करके जीते हैं, इन दहशतगर्दों का हम मुकाबला करेंगे, कामयाब होंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि जो भी सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पे इस किस्म का हमला कर सकते हैं, कि वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। चीनी नाज़िम उल अमूर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के बाहमी मुफादात को नुकसान पहुंचाने वालों के अज़म को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। After this tragedy happened, people from all sectors in Pakistan condemned the terrorist attack and mourned for the victims. This fully demonstrates that China and Pakistan over their friendship is deeply rooted in the hearts of our two peoples. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ारत ख़ारजा में चीनी बाशिंदों की तस्वीर पर फूल रखे और 1 मिनट के लिए खामोशी भी इख्तियार की गई। तकरीब में वज़ारत ख़ारजा के अफसरान समेत चीनी सफारतखाने के हुकाम ने भी शिरकत की। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से दफ्तर ख़ारजा के अफसरान ने तारफ़ी मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को मरबूत अंदाज में वज़ा करने के हवाले से तजावीज़ का जायज़ा लिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फॉरेन सर्विस के अफसरान के जदीद मयार से आरास्ता तरबियती प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अफसरान को ज़ाती और पेशा वाराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ारजा ने अफसरान की सलाहियतों पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में फ्रीलांस फेस्ट की तकरीब से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि IT के शोबे को तरजीह देकर पाकिस्तान कम वक्त में तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है। IT शोबे का माशी तरक्की और लोगों को रोजगार फराहम करने में भी नुमायां किरदार है। हमें नौजवानों की तकनीकी तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये जो IT वाला एरिया है, इसके अंदर पाकिस्तान एक्सपोनेंशियल चेंज आ सकती है। नौजवानों का ह्यूमन रिसोर्स इस तरफ अगर हम डायरेक्ट करें तो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ टू डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। हम जो अनपढ़ हैं उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको जल्दी फारिग करके मार्केट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रेजिस्टेंस हर तरफ है। ये इनर्शिया ओवरकम करना एक तरक्की याफ्ता कौम के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि तमाम जमातें मिलकर मुल्क की इक्तिसादी समत को दुरुस्त रास्ते पर गामजन कर सकती हैं। हम डिजिटलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं। नौजवानों की IT के मैदान में तरबियत नागुज़ीर है। तफसील से आगाह करेंगे शाहरुख शफी। डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से गोल बेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है और सबको मिलकर तरक्की के अमल में हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में डिजिटल इनकलाब हर शोबे में दाखिल हो चुका है, जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। 8 सालों से जो पेंडिंग इशू था 3G 4G लाइसेंसेस का, उसको नहायत ट्रांसपेरेंट अंदाज में हमने फौरी तौर पे जब हल किया कि वी हैव अ यंग पॉपुलेशन, more than 1 million laptops were distributed that helped us in creating a new class of IT entrepreneurs. एहसन इकबाल ने कहा कि इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए हुकूमत ने नौजवानों के लिए खुसूसी फंडिंग की और हर यूनिवर्सिटी से कहा गया कि वो इनक्यूबेशन सेंटर तैयार करें ताकि नौजवानों में स्टार्टअप कल्चर को फरोग दिया जा सके और वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। हम सबको इसमें नॉर्मल स्पीड से नहीं बल्कि रॉकेट स्पीड के साथ चलने की जरूरत है। आप काम करें, आपको हम पीछे से जिस हद तक सपोर्ट दे सकेंगे करेंगे। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर ने कहा कि आने वाले पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हुकूमत एक खुसूसी फंड तैयार करेगी जिसके तहत गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की माली मुआवनत की जाएगी। शाहरुख शफी, PTV न्यूज। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने गुज़िश्ता दौर में बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां तो बर्दाश्त करी, लेकिन साबिक हुक्मरानों की तरह कौमी मफादात को ठेस नहीं पहुंचाई। अब लीगी क़यादत मईशत की कश्ती मंझधार से निकालने के लिए क्या क्या जतन कर रही है, आपको दिखाते हैं। साबिक दौरे हुकूमत नाअहली, इंतकाम और अवाम पर आए रोज माली बोझ के अजाब से इबारत है। PTI की हुकूमत के दौरान और उनके जाने के बाद जहां तक नजर गई, इक्तिसादी तबाही नजर आई।
मौजूदा हुकूमत ने इक्तदार संभाला तो इंकशाफ हुआ कि साबिक हुकूमत मईशत को पाताल में धकेल गई। पीटीआई ने हर तरफ तबाही मचाई, माशी बहरान की जड़ें इतनी गहरी कर दी कि कौम की इज्तिमाई कोशिशों और ताउन के बगैर इस्लाह अहवाल मुमकिन नहीं। साबिक दौर की माशी तबाही से निपटने की कोशिशें जारी तो हैं, मगर बहरान इस कदर संगीन है कि हुकूमत को आउट ऑफ बॉक्स हल की तरफ जाना होगा। साबिक हुक्मरानों ने पहले इक्तदार की हवस और फिर हुकूमत छिन जाने पर न सिर्फ कौमी मफादात पर ज़रबे लगाई बल्कि आईने पाकिस्तान का भी तमाशा बना दिया। साबिक हुक्मरान सियासी दुश्मनी में अंधे होकर कभी आवाम को सिविल नाफरमानी के मशवरे देते रहे और कभी तरसिलाते ज़र सरकारी चैनल से ना भिजवाने पर इसरार करते रहे। सियासी तारीख में मुश्किल वक्त तमाम जमातों पर आते रहे, मगर इक्तदार से महरूमी पर कभी कोई पार्टी पीटीआई की तरह कौमी मफादात पर हमला आवर नहीं हुई। हुकूमत में शामिल जमातों ने साबिक दौर में बदतरीन इंतकाम तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हुबुल वतनी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और आइन का तकद्दुस हमेशा मुकद्दम रखा। मुल्क के संजीदा हल्के आइन की पामाली के जिम्मेदार किरदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के ख्वाहां हैं ताकि आइंदा किसी को आइन शिकनी की जुर्रत ना हो सके। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सईद खुर्शीद शाह ने कहा है कि इमरान खान ने आइन पर हमले करके इसे पामाल किया। इमरान खान वावेला करना छोड़ दें, इन्हें आइनी तरीके से हुकूमत से हटाया गया है। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोशिश है जल्द इंतखाबी इस्लाहात हों। मज़ीद तफसील बताएंगे शिराज अली। वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना था कि हमने पहले ही कहा था कि इमरान खान को आईनी तरीके से हटाएंगे। साजिश का बयानिया वो इसलिए लाए कि पीटीआई के पास अपनी कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान जब हुकूमत में थे तब भी इनका यही रवैया था, हम मिलकर ऐसे कवानीन बनाएंगे जिस पर आवाम को एतमाद हो। इसने सियासत को सियासत नहीं समझा, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं समझा, अदारों को अदारा नहीं समझा और आवाम के मुश्किलात को मुश्किलात नहीं समझी, रियासत के मसाइल को मसाइल नहीं समझे और एक ही एजेंडा इसके पास था कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आज भी उसके पास एक ही लफ्ज़ है कि मुझे क्यों हटाया। वफाकी वजीर ने कहा कि IMF का दबाव, मुल्की मईशत पर बोझ और बेयकीनी की सूरत हाल मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान ने 22,000 अरब रुपए मुल्क पर कर्जा चढ़ाया, लेकिन ये बताने से कासिर हैं कि पैसा कहाँ खर्च किया। वो अभी तक अपने 8 तकरीरों में 1 मिनट के लिए भी नहीं बोला है कि मेरा कोई ये कारनामा है, क्या किया कोई नहीं बता सकता। सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि मुल्क को बचाने के लिए साफ शफाफ इलेक्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहली बार आज़ाद इलेक्शन कमीशन आया है जो पीटीआई से बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम रिफॉर्म्स करके इलेक्शन कराने की बात पर जोर दे रहे हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बेगुनाह अवाम को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। भारत की बदनाम ज़माना एजेंसियों, फौजियों और पुलिस के एहलकारों ने पूरे इलाके में छापे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी, जिससे लोगों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक रियासती तहकीकाती इदारों NIA और SIA ने मकबूजा वादी और जम्मू खित्ते में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, जिनमें कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मोहम्मद हुसैन खतीब की रिहाइशगाह भी शामिल है। इन छापों के दौरान भारतीय फोर्सेज के एहलकारों ने खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को हिरासा किया और मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। काबिज फोर्सेज ने गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान मुतादिद बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार किया और उनकी नजरबंदी का जवाब पेश करने के लिए उन्हें मुजाहिदीन और मुजाहिद तंजीमों के मुआवनीन करार दिया है। हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात में मकबूजा इलाके में भारतीय रियासती दहशतगर्दी में इजाफे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय मजालिम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपनी जायज़ जदोजहद से दस्तबरदार होने पर मजबूर नहीं कर सकते। भारतीय हुकाम की जानिब से कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन पंडित को बरतरफ किए जाने के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया। तलबा ने हाथों में प्रोफेसर की तस्वीर वाले बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए यौम स्याह का नारा दर्ज था और हुकाम के इस इकदाम की मजम्मत की गई थी। मोदी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन पंडित समेत 3 कश्मीरी सरकारी मुलाजिमीन को तहरीक हक़ खुद इरादियत की हिमायत करने पर बरतरफ कर दिया।
भारत में हिज़्ब इख्तलाफ की बड़ी जमात कांग्रेस भी मोदी के खिलाफ बोल पड़ी। मोदी की ज़ेर क़यादत हुक्मरान जमात बीजेपी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत के बीज बो रही है। पार्टी के तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने नई दिल्ली में कहा कि मोदी की हुकूमत मजहबी इंतहा पसंदी को हवा दे रही है ताकि मुसलमानों, मसीहियों और सिखों को निशाना बनाया जा सके। बीजेपी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करके इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहती है। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे अनीस आवान। मुल्क भर के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर 16 मई तक बरकरार रह सकती है। सिंध और बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों में शदीद हीट वेव के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग है, उसका एक इफ़ेक्ट है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो दुनिया में जो है वो बढ़ रहे हैं, चाहे वो हीट वेव्स हों, बारिशें हों, सैलाब हों, जो आजकल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक अंसर है। मज़ीद एक हफ़्ता जो है वो हीट वेव जो परसिस्ट करेगी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में। थोड़ा सा जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि स्लाइट रिलीफ के चांसेस हैं आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान, जब शाम या रात के वक्त आंधी गर्द आलूद हवाएं झकड़ चलेंगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को दिन के औकात में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। शहरी खुद को हीट वेव से बचाने के लिए सर को ढांप कर रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। मई में इतनी गर्मी है तो आगे जाके क्या होगा, तो यही है कि अब हम दरख्त लगाएं और ग्रीनरी बढ़ाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद टेम्परेचर है। घरों में रहें, ख्याल रखें, बाहर निकलना है तो अपनी थोड़े केयर करके निकलें। हीट वेव से बचने के लिए जिस्म में नमकियात और पानी का तवाज़न बरकरार रखना जरूरी है। गर्मी की मौजूदा लहर के पेश नज़र अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे से जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वहीं परिंदे और जानवर भी गर्मी से मुतासर हो रहे हैं। माहिरीन ने शदीद गर्मी के बायस फसलों और फलों की पैदावार भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर लाहौर में आज साल का गर्म तरीन दिन रहा। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी से मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। तफसील बताएंगी अज़का मकसूद। महकमा मौसमियात ने लाहौर में गर्मी की शिद्दत की दूसरी लहर से मुतालिक खतरे की घंटी बजा दी है। आज हफ्ते के दिन ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ये दर्जा हरारत बढ़कर कल तक 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्मी मैडम इतनी ज़्यादा पड़ रही है, पिछले साल भी निस्बत ज़्यादा पड़ रही है। हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला बराने रहमत दे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, यदि मेरे काम नहीं करता है। बारिश हो नहीं रही, कोहली से आते हीट सारी मुंह पर पड़ती है। मुल्क के बेशतर इलाके भी इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। मैदानी और बालाई इलाकों में भी दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। आज सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस सीज़न का अभी तक होगा लाहौर में, लेकिन अगले 2-3 दिन तक इसमें स्लाइट कमी आने का चांस है। उसकी वजह यह है कि इस दौरान आंधी या गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं, जिसकी वजह से 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो सकता है। 18 तारीख से ऑनवर्ड ये हीट वेव दोबारा शुरू होगी। माहिरीन सेहत के मुताबिक लोग बिला जरूरत घरों से निकलने से गुरेज करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बागों के शहर लाहौर में हीट वेव का दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है, जो कि 16 मई तक जारी रहेगा। अज़का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कौमी इदारे सेहत ने हीट स्ट्रोक पर तालीमी इदारों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। ये एडवाइजरी हीट स्ट्रोक की रोकथाम के लिए बर वक्त मुनासिब इक़दामात के लिए मुतल्लिका तालीमी इदारों को जारी की गई है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हुकूमत आवाम की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने, बीमारियों से बचाने के लिए मरबूत इक़दामात को यकीनी बना रही है। उन्होंने हिदायत दी कि तलबा को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ठंडी अंदरूनी जगह का इंतजाम किया जाए, बैरूनी खेल की जगहों को साया देने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाए, तलबा के लिए पानी की वाफिर फराहमी के लिए वाटर कूलर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। मुल्क के वसी और जनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवाएं और झकड़ चलने का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पुछार और कश्मीर में चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
آج ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد جیکب آباد 51 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈیرہ غازی خان موہنجو داڑو 50، سبی، دادو، سکرن، خیرپور، لاڑکانہ اور پڑ ایدر میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وادی ہنزا کے علاقے حسن آباد میں سیلاب سے ٹوٹنے والے پل کی تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے، تاہم عوام کی سہولت کے لیے ایک پیدل راستہ بنا دیا گیا ہے۔ متاثرین کے لیے پاک آرمی کی جانب سے ایک روزہ میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے محمد اکرام نجمی۔ آج سے 7 روز قبل جو حسن آباد گلیشیر سے پانی کے اخراج کے بعد جو شاہراہ خرخوم پہ پل ٹوٹنے اور زمینی راستہ کٹ جانے کی وجہ سے 2 گاؤں جو آپس میں ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، حسن آباد کا 2 گاؤں، اب ان کے لیے ایک زمینی پیدل پل بنایا جا رہا ہے، جس کا کام کل رات سے سٹارٹ ہوا تھا اور اب تقریباً مکمل ہو رہا ہے اور کچھ ٹائم بعد یہ پل مکمل طور پہ فنکشنل ہوگا۔ اب بھی لوگ اس پہ سے گزر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بحالی کا کام اب زور و شور سے جاری ہے۔ جو پرانا پل ہے اس کا جو ریمیننگ حصہ تھا اس کو بھی گرایا گیا ہے تاکہ وہاں پہ مطلب چھوٹے گاڑیوں کے لیے برج تعمیر ہو سکے عارضی طور پہ۔ اس کے علاوہ جن گاؤں کے لیے پانی منقطع ہو چکا تھا، پینے کا پانی اور آبپاشی کا پانی، ان کو بھی بحال کیا جا رہا ہے ان چینلز کو۔ اس کے علاوہ بجلی کا جو 1.2 میگا واٹ کا جو پاور ہاؤس حسن آباد میں بند ہو گیا تھا، وہ بھی کل رات سے مطلب چلایا گیا ہے اور اس سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ پشاور میں محکمہ انسداد دہشت گردی اور حساس اداروں نے مشترکہ کارروائی کے دوران 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور حساس اداروں نے پشتخرا کے علاقے میں کارروائی کے دوران دہشت گردوں کی جانب سے پولیس پر فائرنگ کی گئی۔ سیکورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والا ایک دہشت گرد حسن شاہ 3 مارچ کو کوچہ رسالدار مسجد میں خود کش حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وزارت اطلاعات و نشریات اور ISPR کے اشتراک سے مختصر دورانیے کی فلموں کے دوسرے قومی میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے اعلامیے کے مطابق مقابلے میں جیتنے والوں کو دنیا کے نامور فلم سکولز میں اسکالرشپ جیتنے کا موقع ملے گا۔ شیخوپورہ کی تحصیل شرکپور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو ملک معاشی طور پر خطرناک پوزیشن میں جا چکا تھا۔ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ اس مقصد کے لیے پیکج تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے، اب وہ عوام کو گمراہ کر کے انتشار پھیلا رہا ہے۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا کہ پاکستان 2025 تک شدید پانی کی کمی کا شکار ہو جائے گا۔ پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ صنعتی انقلاب سے کرۂ ارض میں ایندھن کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ اقدامات نہ کیے تو موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوں گی۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر پھٹتے ہیں اور سیلابی صورتحال بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان خشک سالی کا شکار ہے۔ 1991 کے معاہدے کے تحت منصفانہ پانی کی تقسیم ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے شہروں، قصبوں اور دیہات کی پائیدار صفائی کے لیے کمشنر سے ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ صوبے میں صفائی کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کو صاف ماحول دینا ہمارا فرض اور ان کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی کے معاملے پر کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ حمزہ شہباز نے ہدایت کی کہ صوبے بھر میں مستقل صفائی ستھرائی کے لیے فول پروف میکانزم وضع کیا جائے۔ عمران خان سیاسی تناؤ اور تصادم کی راہ پر چل رہے ہیں۔ 4 برسوں میں ہر شعبے کو تباہ کیا گیا۔ آپ دھونس چلائیں گے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اویس لغاری اور رانا مشہود احمد نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ تفصیل بتائیں گے طاہر کلاسرا۔ نون لیگ کے رہنما رانا مشہود احمد کے ہمراہ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رکن پنجاب اسمبلی اویس لغاری نے کہا کہ عمران خان نے 4 برسوں میں ملک کی معیشت کو تباہ کیا۔ اویس لغاری نے کہا کہ تحریک انصاف سیالکوٹ میں جلسے کے معاملے کو مذہبی ایشو بنا رہی ہے۔ جب وہ حکومت میں تھا تب بھی اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا، آج وہ اپوزیشن میں ہے تب بھی وہ ملک کا بیڑا غرق اپنے طور طریقے سے کر رہا ہے۔ اس کا تو نام ہی عمران برباد خان ہونا چاہیے۔ یہ ہر طرف بربادی کی طرف لے کے جا رہے پاکستان کو۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود احمد نے کہا کہ 2018 کے الیکشن چوری کر کے عمران خان کی جھولی میں ڈالا گیا۔ وہ اپنی 4 سالہ نااہلی چھپانے کے لیے معاشرے میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کو انتشار کے راستے پہ ڈال کے
پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑیں، انارکی ہو۔ نون لیگ کے رہنماؤں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محمد حمزہ شہباز صوبے کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر دوبارہ گامزن کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ صرف مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے۔ طاہر کلاسرا، PTV نیوز، لاہور۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت تباہ کرنے والوں کو سری لنکا کی مثال دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ PTI رہنماؤں کی نیوز کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فرح گوگی کو رشوت کا بلما بنانے والا عمران خان اب کلمہ پڑھ کر اپنی رشوت خوری چھپا نہیں سکتا۔ طلال چودھری نے کہا کہ ڈالر خور، تحفہ فروش اور مذہب کارڈ استعمال کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان اور PTI نے مسیحی برادری سے گنڈا گردی کرنے کی کوشش کی، جسے حکومت نے ناکام بنا دیا۔ ناظرین، وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں فیڈرل جوڈیشل کمپلیکس کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی حکام نے منصوبے سے متعلق امور کے بارے میں بریف کیا۔ وزیر قانون سے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل سید جعفر طیار بخاری کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی اور درپیش مسائل سے آگاہ کیا، جن کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ ملاقات میں وکلا پروٹیکشن ایکٹ پر بھی گفتگو ہوئی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ میں ہیضے کی وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3000 سے زائد ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حکم پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں وقار احمد۔ 35 سے 40 ہزار آبادی کے پیر کوہ میں اندازاً 3200 افراد ہیضے سے متاثر ہیں۔ آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے 17 اپریل سے ہیضے کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہوئے۔ ڈائریا کی وبا انتہا درجے تک پہنچ چکی ہے، چھوٹے بڑے بچے سب بیمار ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے سخت نوٹس لینے کے بعد سیکریٹری ہیلتھ، سیکریٹری پبلک ہیلتھ اینڈ انجینئرنگ PPHI، کمشنر سبی ڈویژن کے ساتھ FC اور WHO کی ٹیمیں مریضوں کے علاج اور پینے کے پانی کے فراہمی کے مشن میں مصروف ہیں۔ سیکریٹری ہیلتھ صالح ناصر کا کہنا ہے کہ وبا کی وجہ سے متاثرہ افراد میں یومیہ 50% اضافہ ہو رہا ہے۔ کیسز بڑھ رہے ہیں، اس دن تک یہاں رہوں گا جب تک کولرا کے سارے کیسز ختم نہیں ہوتے۔ پیر کو گیس فیلڈ ہے جہاں زیر زمین پانی نہیں بلکہ گیس کے ذخائر ہیں۔ پیر کو میں پانی نزدیکی علاقے واگو اور ڈیرہ بگٹی سے آتا ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے قدرتی تالاب یا تو خشک ہو گئے یا بیشتر کا پانی زہریلا ہو گیا۔ کافی مریض ہم نے دیکھے ہیں جن کی حالت خراب تھی۔ کافی بچے ہمیں جو ہے ملے ہیں جن کو کالرا بھی ہے، اس کے علاوہ ڈائریا کے کیسز بھی ہیں۔ ہیضے سے 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ پانی کے معاملے کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ۔ قید میں قانون کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اس پر عمل ہو۔ لاہور کے شہری نہر میں نہانے کی پابندی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سرے عام نہاتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ مزید کا تفصیلہ بتائیں گی وردہ سلیم۔ نہر کنارے اٹکیلیاں کرتے اور ڈبکیاں لگاتے یہ نوجوان گرمی سے نجات کے لیے یہاں آئے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کا یہ عمل غیر قانونی بھی ہے اور خطرناک بھی۔ لاہور کی نہر جو شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے ہوئے ہے، یہ نوجوان اس کو گہن لگانے پر تلے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے نہر پر پابندی کے باوجود شہری پابندی سے کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں۔ نہر میں پانی جو ہے اس میں کچھ سوسائٹیوں کی طرف سے گندا پانی بھی ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہر کا پانی جو زہریلا ہے، اس سے آپ کو بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں، ہیپاٹائٹس C B، یہ ساری چیزیں آپ کو ہو سکتی ہیں، آپ کی جلد بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ میکسیمم اوائڈ کریں نہر میں نہانے سے، یا تو وہ دفعہ 144 کے اس میں آ جائیں گے، زمرے میں آئیں گے، ادروائز انہیں پھر بیماریاں لاحق ہوں گی۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ چھوٹے بچے اور خواتین بھی نہر میں نہانے کو پہنچے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں سے کچھ مقامات پر سیوریج کا پانی نہر میں شامل ہونے سے نہر میں نہانا بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے، مگر شہریوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ ماضی میں نہر میں نہانے کے دوران کئی جان لیوا حادثات بھی ہوئے ہیں۔ یوں تو ضلعی انتظامیہ نے کئی بار نہر پر نہانے والوں کو روکا اور آپریشن بھی کیا، مگر شہری ہیں کہ مانتے کب ہیں۔ نہر میں نہانا حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ گرمی سے بچنے کے لیے متبادل طریقے اختیار کریں۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
नाजरीन, 22 मलेशियन बाइकर्स पाकिस्तान के शुमाली इलाकों के खूबसूरत कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद से शुरू होने वाली बाइक रैली के शरका सवात से चित्राल पहुंच गए हैं। अरशद खान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी और एबो बाइकर्स क्लब मलेशिया के ताउन से मुनक्किदा मोटर बाइक रैली में शरीक मलेशियन बाइकर्स अपने मंजिल शंदूर टॉप की तरफ रवा दवा है। आज की रैली दूसरी मरहले में मलेशियन बाइकर्स स्वात से चतराल पहुंच गए हैं। रैली में शरीक बाइकर्स इस्लामाबाद से बरास्ता मलकन टॉप स्वात पहुंचे। रास्ते में मलेशियन मेहमानों ने रिवायती गन्ने के जूस का भी लुत्फ उठाया और अपनी प्यास बुझाई। Thank you to my state Ipoh. Okay, we thank you Pakistan, we thank you Khyber Pakhtunkhwa, we thank you the tourism of Khyber Pakhtunkhwa. Today we ride motorcycle from Islamabad to Swat and we have a very good journey today. We stopped at the place whereby we can have a very fresh cane drinks and also we have a very good lunch somewhere in the middle between Islamabad to Swat. So we have only good experience and we can tell any tourist, if you're interested in beautiful nature and beautiful culture and nice people, just come to Pakistan. It's very easy. It's easy to get the visa. रैली कराकोरम, हिंदुकुश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिले से होती हुई कुल 1950 किलोमीटर का सफर तय करके शंदूर टॉप से होती हुई गिलगित में दाखिल होगी। अरशद खान, PTV न्यूज, पेशावर। और ठंडा मकाम होने के बायस एबटाबाद में मौसम बहार ताखीर से ही आता है। खैबर पख्तूनख्वा के पुरफजा मकाम में बहार की आमद के मौके पर फूलों की दिलकश नुमाइश हुई। तफसील बताएंगे अमजद अली खान। मौसम बहार की आमद पर एबटाबाद के खूबसूरत लेडी गार्डन पार्क को रंग बरंगे फूलों से सजा दिया गया है, जहां जश्न बहारान के नाम से 3 रोज़ा नुमाइश जारी है। नुमाइश में खवातीन और बच्चों के अलावा हर उम्र के साहिब ज़ौक़ अफराद कसीर तादाद में शिरकत कर रहे हैं। 3 रोज़ा नुमाइश में मुख्तलिफ अक़साम के फूलों को इंतहाई खूबसूरती से पेश किया गया है। नुमाइश के पहले रोज केन बोर्ड स्कूल के बच्चों ने टेबलोस पेश किए। हमारे फेस्टिवल में फूड के स्टॉल्स भी हैं, दस्तकारी के स्टॉल्स भी हैं और फ्लावर शो भी है। मुख्तलिफ सेंटर से अपने फ्लावर शो के स्टॉल लगाए हैं। नुमाइश में हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग्स और गर्मियों की मलबूसात और बच्चों की दिलचस्पी के लिए खेलों और खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा बच्चों और फैमिलीज की तफरीह के लिए पुतली तमाशा और मैजिक शोज का भी एहतमाम किया गया। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इसराइल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बराह रास्त फायरिंग से कत्ल होने वाली खातून सहाफ़ी शीरीन अबू आकिला के जनाजे पर पुलिस ने हमला कर दिया और शुरका को तशद्दुद का निशाना बनाया। मकतूल सहाफ़ी के जनाजे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इजरायली पुलिस ने जनाजे के शुरका पर हमला कर दिया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे भगदड़ और अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने नौजवानों को जनाजे में शिरकत करने से रोका, जिस पर नौजवानों ने शदीद नारेबाजी की। पुलिस ने नौजवानों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग भी की। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी कौंसिल ने फ़लस्तीन में इसराइली फोर्सेस के हाथों अमरीकी खातून सहाफ़ी के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सलामती कौंसिल की जानिब से जारी बयान में मुतालबा किया गया है कि शीरीन अबू आकिला के कत्ल की फौरी, मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाएँ। अमेरिका ने एक बार फिर रूस से यूक्रेन में जंगबंदी का मुतालबा किया है। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने रूसी हममंसब सरगई शोइगु को टेलीफोन किया और अपील की कि जंग फौरी बंद की जाए। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी के मुताबिक इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में बातचीत के मुज़ाकराती चैनल्स को खुला रखने पर भी गुफ्तगू हुई। 18 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और अमेरिका के वज़ीर दिफा के दरमियान ये पहला राब्ता था। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जंग के आगाज से लेकर अब तक रूसी फौज के ज़ेर कब्जा 1000 से ज़ायद बस्तियों को वागुज़ार करवा लिया गया है। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली में 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि मौत की तादाद में इजाफा हो सकता है। आतिशज़दगी के इस वाक़े में 60 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है।